So first of all, we'll draw a overview about the Russian Revolution. What was about? In Russia, the government headed by the Tsar Nicholas II, who was very oppressive in nature. The common man, the common people began to hate him. Popular discontentment rose to a new height when the Russia was defeated by Japan. In the wake of this defeat, a large number of secondary revolutionary parties sprang up. तो जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ या फिर हम कह सकते जो रशिया का जो किंग था वो था जार निकोलस सेकंड. His behavior is not good towards his public, so everybody hate him. Another reason the public hate to government or monarchy or Tsar Nicholas was that Russia was defeated by Japan in 1904 in 5. So what happened? In March 1917, the Tsar was forced to abdicate and the provincial government of moderate social revolutionaries was formed. On November 7, 1917, the Bolsheviks under Lenin brought the downfall of the Menshevik government and established the Soviet Republic. Bolshevik पार्टी है, मेंशेविक भी एक पार्टी है. So the Bolshevik is under Lenin, who brought the downfall of the Menshevik government and established the Soviet Republic. So here you can see in the picture that socialism in Russian Revolution. In previous lecture I will discuss about the socialism. Socialism means when all sources are controlled by the government. So the age of social change. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया गया था एक सोसाइटी को. और जो 3 कीवर्ड्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो कहते हैं फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लिबर्टी. Before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. तो जो जितने भी मतलब कंट्रोलिंग पावर थी वो किसके हाथ में हुआ करती थी? एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में या फिर चर्च के अंदर जो पॉप रहता है उसके हाथ में पावर्स हुआ करती थी, इकोनॉमिक पावर एंड सोशल पावर. एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ये है कि जो किंग्स होते हैं उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, हाई प्रोफाइल पीपल्स. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who control social power began to be discussed. The development in the colonies, in turn, reshaped these ideas of societal change. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Response varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. So जिस तरीके से हर एक कंट्री में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है पार्टीज की, तो सेम रशिया में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी. और वो कितने टाइप्स की थी? 3 टाइप्स की थी. मतलब 3 टाइप्स के पर्सन की कम्युनिटी, पर्सन के ग्रुप्स रशिया के अंदर रहा करते थे. सबसे पहले इसके अंदर लिबरल्स, सेकंड रेडिकल्स एंड थर्ड वन इज ए कंजर्वेटिव्स. सो हाउ द लिबरल अप्रोच द सोसाइटी. लिबरल्स लुक टू चेंज सोसाइटी. दे वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस. तो लिबरल्स का ऐसा मानना था कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जो हमारे सारे रिलीजन को टॉलरेट कर सकता हो. इट मीन्स दे वांट सम सेक्युलर टाइप ऑफ स्टेट. व्हाट डज सेक्युलर मीन? Secular means a nation, a country who not promote any one religion. It respect all the religions equally or treat equally. So they oppose the uncontrolled power of dynasties rulers. उन्होंने डायनेस्टी रूलर्स थे यानी कि जो राजा था उसकी पावर को अपोज करना शुरू किया. And they wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government
subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rules and officially. They did not believe in universal adult franchisee, felt a man of property mainly should have the vote, also did not want the vote for a woman. इट मीन्स जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है जिसके अंदर एक सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वहाँ पे जुडिशरी वर्क करती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो वुमेन है उनको वोट देने का परमिशन नहीं है. द वुमेन डिड नॉट हैव ए राइट टू वोट, ओनली मैन हैव द राइट टू वोट एंड मैन हैव ऑल्सो राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो. सेकेंड जो आइडियोलॉजीज है रशिया के अंदर वो है रेडिकल सोसाइटी. व्हाट द रेडिकल अप्रोच? रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट्स. रेडिकल्स हैं जो वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं वुमेन्स के. सो एंड दे अपोज द privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. मतलब जो रेडिकल्स हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में को अपोज नहीं करते हैं, बट उनका ये मानना है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, वो किसी कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा रहे. तो वो बेसिकली किसके अपोज है? लैंड ओनर्स और वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट में. थर्ड जो आइडियोलॉजीज है वो है कंजर्वेटिव्स की. कंजर्वेटिव्स किस तरीके से थोड़ा सोचते हैं? कंजर्वेटिव्स अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन माइंड टू द नीड फॉर चेंज. जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कंप्लीटली ओपन माइंडेड है यहाँ पर. In the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो जैसा कि कंजर्वेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेंजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं, बट यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स हैं वो चेंजमेंट को अप्रोच कर रहे हैं. बट कैसे कर रहे हैं? चेंजमेंट हो बट उसमें जो पास्ट है उसका भी ध्यान रखा जाए, और जो चेंजमेंट है उसकी जो प्रोसेसिंग है दैट इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेसिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड सोशल चेंज. अब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं और कैसे उससे सोसाइटी में चेंज आएगा उसको हमको इसके अंदर देखते हैं. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपके ब्रिटेन से शुरू होता था. ये 18th सेंचुरी में ब्रिटेन से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड होता चले गया. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंजेस become? New cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred. रेलवेज एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी, रेलवे का जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया था, नई सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई थी, जो सिटीज़ हैं उनमें भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गई थी. वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, वेजेस वर पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन एंड प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर ग्रोइंग रैपिडली. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर लेबर्स के वो बहुत ही ज़्यादा थे, और जो लेबर क्लास थी उसके अंदर वुमेन्स भी हुआ करते थे, मैन भी हुआ करते थे, चिल्ड्रन भी हुआ करते थे, और उनको लगभग 14 आवर्स 18 आवर्स फैक्ट्री में वर्क करना होता था. और जो पॉपुलेशन है वो भी लगातार बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, रैपिडली ग्रो कर रही थी, और बिल्कुल भी हाइजीनिक एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं था. देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ हाउसिंग, देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ सैनिटेशन. और जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो इसके बारे में सोच रहे थे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए. Liberals and radicals, who themselves were often property owners and employers, firmly believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. उनका मानना था कि अगर हम लेबर को उसकी वैल्यूज़, उसके जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए उसके लेबर को, और उसको थोड़ी फ्रीडम दिया जाए, तो हमारे जो लेबर क्लास है वो बहुत ही एक उसका जो मोरल है वो अप होगा और वो बहुत अच्छे से काम
कर पाएगा। इट मीन्स वैल्यूज़ पर जोर दिया जा रहा था इसके अंदर कि जो लैंड ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो लेबर्स के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें। Some nationalist liberals and radicals wanted the revolution to put an end to the king of governments established in Europe in 1815. Nationalists talk of revolution that would create nations where all citizens would have equal rights. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Giuseppe Mazzini वैसा ही रोल प्ले करता है इटली के अंदर जो रोल आपके इंडिया में किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जर्मनी के अंदर एक पर्सन है बिस्मार्क, जिसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है, यानी कि इसने जर्मनी को यूनाइट करने में हेल्प करी थी। इटली को जो हेल्प करी थी उसका नाम था मेज़नी, और इंडिया को जिसने हेल्प करी थी उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Socialists were against private property and saw it as the root of all social evils of the time rather than single individual controlling property. They wanted more attention would be paid to collective social interest. तो जो सोशलिस्ट थे वो हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रहा करते थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि द सोशलिस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज हुज सोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉर, और कोई भी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है। इसमें जितना भी वर्क होता है वो हमेशा सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया जाता है। तो देखिए ये है लुइस प्लांक, इन्होंने क्या किया था इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे उनके फ्यूचर को लेके अलग अलग विजन्स थे, अलग अलग परसेप्शन थे। तो जिनमें से एक है रॉबर्ट ऑन, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो जो रॉबर्ट ऑन है ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की बात करता है और जिसका नाम ये देता है न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो यूएसए में है। दूसरा सोशलिस्ट पर्सन है, इसका नाम है लुइस ब्लांक, जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। ये बोलता है कि हमें कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करना चाहिए। मैं बता दूं कोऑपरेटिव इज वर्किंग लाइक ए सोशलिस्ट, जिसमें जो सोशल इंटरेस्ट होता है वो एक कॉमन होता है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट बेसिकली जो मार्केट है उसमें जो डिसीजंस हैं उनको लेने की कैपेसिटी कुछ बिजनेस पर्सन्स में होती है, गवर्नमेंट उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव एंड द कैपिटलिस्ट। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of argument. रशिया के पर्सन है, इनका ये हमेशा जो लेबर क्लासेस को सपोर्ट करते हैं, और फ्रेडरिक एंजल ये एक फिलोसोफर है, एक पॉलिटिकल थिंकर है। इनकी आइडियोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा फेमस है रशिया के अंदर। देन सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s, socialist ideas spread through Europe. An international body was formed, namely the Second International. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions, set up funds to help members in times of distress, and demanded a reduction of working hours and the right to vote. तो जो सेकेंड इंटरनेशनल ये बॉडी बनाई गई थी, बेसिकली इसका जो वर्क था वो क्या था कि जो जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली ग्रो कर रहा था और उसके इंडस्ट्रीज़ में जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, जैसे वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा थे, कुछ राइट्स नहीं थे लेबर्स के पास, उनका जो डिमांड थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, उनको एक बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए थी, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे थे। तो इन सब को लेकर वो क्या करते थे, बारहवीं चीज में रिवॉल्ट किया करते थे। इन जर्मनी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी के अंदर ये पार्टी विक्ट्री कर जाती है, इसका नाम है एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।
By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. तो जो सोशलिस्ट होते हैं ये लेबर पार्टी बनाते हैं ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं फ्रांस के अंदर. जर्मनी के अंदर कौन सी पार्टी थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. Their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberal and radicals. देखिए जो गवर्नमेंट थी वो किससे चल रही थी? आपकी कंजर्वेटिव से, लिबरल से एंड रेडिकल सोसाइटी से चल रही थी. सो हाउ द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट. देखो ये व्लादिमीर लेनिन है जो क्या कर रहा है? अपने सोल्जर्स को एड्रेस कर रहा है. मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. लेनिन वहाँ का ऐसा ही लीडर है जैसे हमारे लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इम्पॉर्टेंट है. देखते हैं इसमें. द रशियन एम्पायर इन 1914. इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया. यहाँ पर स्टूडेंट्स जार, जो जितने भी किंग आपके रशिया के अंदर होते हैं उनको जार बोलते हैं, और रशिया की जो पार्लियामेंट होती है उसको बोला जाता है डूमा, DUMA, डूमा. So in 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Lithuania, and Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. 1991 से पहले जो आज का जो रशिया है इसको पहले बोला जाता था USSR. क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें इतने सारे कंट्रीज उसके अंदर USSR के अंदर आया करते थे. So Central Asian countries and Georgia, Armenia, Azerbaijan, the majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist. तो ये डिफरेंट सोसाइटी इसके अंदर रहा करती थी रशिया के अंदर. जो मेजोरिटी रिलीजन था वो किसका था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का. लेकिन इसके अंदर कैथोलिक्स भी इंक्लूड थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे एंड बुद्धिस्ट भी इसके अंदर रहा करते थे. तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि विच वन ऑफ द कम्युनिटी इज इन द मेजोरिटी इन रशिया. तो आपको लिखना है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. देन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन से पहले सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की थी रशिया के अंदर? पीजेंट एंड वर्कर्स फॉर्म मोस्ट ऑफ द Tsarist Russia's population, including the non-Russia nationalists. Their condition was miserable. तो जो peasants हैं और जो workers हैं इनकी जो conditions थी वो बहुत ही पैथेटिक थी, बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि इनसे लगातार बहुत ज़्यादा वर्क करवाया जाता था फैक्ट्रीज के अंदर जो बिल्कुल भी सही नहीं था. Then Russia was industrially a backward country. The condition of the workers was bad. They were forced to work for long hours on low wages. Basically ये प्रॉब्लम थी, एक तो लॉन्ग आवर्स वर्क कराना और दूसरा लो वेज पर काम करना. बट द वर्कर्स एंड पीजेंट्स हैड नो मीनिंगफुल प्लेस इन सोसाइटी. इसका मतलब है कि जो पीजेंट्स हैं और जो वर्कर्स हैं इनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिला करती थी इसमें सोसाइटी के अंदर. दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, और कोई उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे. इन कॉन्ट्रास्ट द नोबिलिटी एट द टॉप एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस इन द स्टेट. Corruption was widespread at all levels. The condition of all soldiers was also not satisfactory. तो बेसिकली जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, सोल्जर्स हैं, इनकी बिल्कुल भी कंडीशन वहाँ पर अच्छी नहीं थी, और जो सोसाइटी थी उसमें बेसिकली क्या था? करप्शन हो रहा था. अब आते हैं इसकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी. The Tsar, the Russian Tsar continued to enjoy unlimited powers and were cruel and irresponsible as before. तो जो रशिया का जो जार था, इनकी रशिया का जो किंग था वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल था, बहुत ही क्रूअल था अपनी पब्लिक को लेकर. एंड दे नेवर केयर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो और वो अपनी पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, चाहे उनको कितने ही दुख वहाँ पर झेलने पड़ रहे हो. द जार निकोलस सेकेंड स्टिल बिलीव्ड इन द ओल्ड डिवाइन ऑफ किंग्स. जो जार निकोलस था ये बेसिकली किस में बिलीव किया करता था? डिवाइन ऑफ किंग्स के बीच में. यानी कि इसका मानना था कि जो राजा है, किंग है, वो मतलब उसको भगवान ने भेजा है उन पर राज करने के लिए.
तो जो राजा की इच्छा है वो अंतिम इच्छा है, और वो राजा की खुद की इच्छा नहीं है, वो भगवान की इच्छा है, ऐसा जार निकोलस सेकंड का मानना था। पीपल वर टैक्स्ड हैवी टू मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, जो पीपल्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिए गए थे। ओनली द नोबिलिटी सपोर्टेड द जार एज एन ऑल इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट वर ऑक्यूपाइड बाय इट। जो नोबिलिटी यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो ही सिर्फ जार के रूल को सपोर्ट किया करते थे, अप्रोच किया करते थे। क्यों? क्योंकि नोबल्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं था, सारा जो टैक्स का बर्डन था वो किसके ऊपर था? लोअर सोसाइटी के ऊपर था। देन ऑल राइट्स ऑफिशियली वर रिक्रूटेड फ्रॉम द अपर क्लासेस ओनली, और जो भी ऑफिशियल राइट्स हैं वो सारे किसके हाथ में हुआ करते थे? अपर क्लास के हाथ में थे। एंड दे वर करप्ट एंड इनएफिशिएंट, और वो लोग क्या थे? करप्ट थे, और जो रूल करने के लिए वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थे। द रॉयल फैमिली वॉज ऑल्सो करप्ट एंड इमोरल। रॉयल फैमिली मीन्स द जार फैमिली, जो किंग की जो फैमिली थी वो भी बहुत क्या थी? करप्ट थी, और उसमें बिल्कुल भी मॉरल्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रशिया, the Russian Tsar had built a vast empire by conquering diverse nationalities in Asia and Europe. The Tsar forced the people to adopt the Russian language and culture. तो जो जार था उसका मानना था कि जो रशिया के लोग हैं उसको रशियन की लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके कल्चर का फॉलो उनको करना चाहिए। और जो रशिया जो कंट्री है, मैंने पहले बताया 1991 से इसको पहले यूएसएसआर बोला करते थे, और इसका एक बहुत ही बड़ा क्या था? वास्ट एम्पायर था, जिसमें कुछ आपके एशियाई कंट्रीज भी इंक्लूडेड थी और कुछ आपके यूरोप की कंट्रीज भी इंक्लूडेड थी। द जार पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन ऑल्सो ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट और वार्स विद अदर मेजर इम्पेरियलिस्ट पावर्स। देन टू क्लासेस ऑफ द रशियन सोसाइटी, तो जो रशिया है वहाँ की जो सोसाइटी थी उसमें दो क्लासेस थी। सबसे पहले आपकी द किंग्स, द नोबल्स एंड द क्लर्जी वर एट द टॉप। दिस प्रिविलेज क्लास कंसिडर्ड ऑफ जस्ट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ये लोग कहते हैं माइनॉरिटी में थे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंजॉयड ऑल द बेनिफिट एंड ऑक्यूपाइड ऑल इम्पोर्टेंट जॉब, और जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब, अच्छी अच्छी जॉब्स होती थी उन पर सारा किसका राइट हुआ करता था? किंग्स का, नोबल्स का एंड क्लर्जीज का। हाई प्रोफाइल पर्सन ही उस पर वर्क किया करते थे। द सर्फ मीन्स फार्मर्स हु स्टूड एट द बॉटम फॉर्म्ड अबाउट 90%, और जो मेजोरिटी में थे वो कौन से थे? फार्मर्स थे, जिनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 90% थी कंट्री की। दे लेड ए मिसेरेबल लाइफ, हैड टू पे हेविली फॉर फ्यू ईयर्स टू ऑन द स्मॉल होल्डिंग दे हैड गॉट, और इन पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, और इनकी जो होल्डिंग थी, इनकी जो लैंड होल्डिंग थी वो भी बहुत ही कम हुआ करती थी, जो एक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। देन सोशलिज्म इन रशिया, ये एक पर्सन है, इसका नाम है जॉर्ज प्लैंकोव। इसका जॉर्ज प्लैंकनोव, ए फॉलोवर ऑफ कार्ल मार्क्स। मैंने आपको पहले बताया जो कार्ल मार्क्स है जो रशिया का है, और ये हमेशा किसको सपोर्ट करता है? आपके लेबर्स को सपोर्ट करता है। तो इसका फॉलोवर है जॉर्ज। ही फ्रॉम द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1883। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु फ्रॉम द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन रशिया? द आंसर इज जॉर्ज प्लैंकोव, व्हेन इन 1883। Many their socialist groups later joined this organization and were known as the Russian Social Democratic Labour Party in 1898। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी रख दिया गया 1898 के अंदर। However, the party soon split into two groups over question of organization and policies। जैसे आपके इंडिया में जो कांग्रेस थी वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक तो मॉडरेट और दूसरे आपके वॉलेंट। मतलब मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी, और जो वॉलेंस करते हैं उनको बोलते हैं उग्रवादी। इस तरीके से जो रशिया है वहाँ पर जो ये पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी पॉलिसी को लेकर। दे वर नोन एज द मेंशेविक एंड द बोल्शेविक। डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स वर एज फॉलो। इनमें क्या डिफरेंस था?
आओ उसको हम जानते हैं. The minority group led by Plekhanov was known as Mensheviks. तो जो प्लैंकनोव जिसने मतलब स्टार्टिंग में पार्टी बनाई थी वो किसको लीड कर रहा था? मेंशेविक्स को लीड कर रहा था. और जो कैसा ग्रुप था? एक माइनॉरिटी ग्रुप था. They wanted to bring changes through peaceful and constitutional means, favor the parliamentary system of government. तो जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है वैसे ही आइडियोलॉजीज किसकी थी? आपके प्लैंकनोव की थी. The minority group consisted of extreme socialists who were called the Bolsheviks. Lenin was the leader of Bolsheviks. तो लेनिन किसका लीडर था? बोल्शेविक्स का लीडर था. और मेंशेविक्स का लीडर था वो था प्लैंकनोव. Then what happened? The turbulent time, the 1905 revolution. The Tsar was not subjected to parliament. Liberals, social democrats and socialist revolutionists worked with peasants and working during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो 1905 के अंदर क्या हुआ? जितने भी सोसाइटी थी, जितनी भी पार्टीज थी, वो हमेशा किसकी डिमांड करने लगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगी. They were supported by nationalists and in Muslim dominated area by Judaists. Price of essential goods rose. 11,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in the wages and improvement in working condition. तो आप लोग देख रहे हो कि जो जितनी भी डिमांड्स हैं सारी वो एक बेसिक लेबर्स डिमांड्स थी, जिसमें जो लेबर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, ये वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको कम कर दिया जाए, 8 आवर्स वर्क कर दिया जाए. और सेंट पीटर्सबर्ग आपके रशिया में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने स्ट्राइक कर दी. ब्लडी संडे. ब्लडी संडे क्या है? यहाँ से आपका एक शॉर्ट नोट बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ब्लडी संडे. इसमें क्या होता है? 9 जनवरी 1905. स्टूडेंट रिमेंबर दिस डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट इज. A body of peaceful work led by Father Gapan with their wives and children were fired at in St. Petersburg. They were on their way to present a petition to the Tsar there. Over 1,000 of them were killed and many more wounded in the firing. This day came to be known as Bloody Sunday as the massacre had taken place on Sunday. इसको ब्लडी संडे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन कुछ लोग जार के पास पिटिशंस लेके गए थे और जो जार है यानी कि वहाँ का जो रूलर है उसने जो वहाँ की मिलिट्री थी उसको ऑर्डर दिए कि इन पर क्या करो? फायरिंग करो. और उस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे बोलते हैं, क्योंकि इस दिन संडे था. ए ड्रेस रिहर्सल. 1905 revolution proved to be a dress rehearsal for the revolution that came in 1917. The incident of Bloody Sunday was caused widespread disturbance all over Russia. तो जो ब्लडी संडे था इसकी जो गूंज थी, इसकी जो साउंड थी वो पूरे रशिया में आग की तरह फैल गई. स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन मेनी रशियन टाउन्स. बहुत क्योंकि जो मास पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? लेबर्स की थी. और उन्होंने क्या करना शुरू किया? स्ट्राइक करना शुरू किया. म्यूटनीज और रेबेलियंस ब्रोक आउट इन द नेवी एंड द आर्मी. जो फोर्सेस थी वहाँ की नेवी एंड आर्मी, उनमें क्या होना शुरू हो गई थी? म्यूटनीज, रेबेलियंस यानी कि विद्रोह होना शुरू हो गए थे. द सेलर्स ऑफ द बैटल शिप पॉट केम इन जॉइन द रेवोल्यूशनरीज. द वर्क इन ट्रेड इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टैंड स्टिल. यानी कि जो शिप्स थे, सेलर्स थे, उन्होंने उनको चलाने से मना कर दिया था. और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज थी उनमें प्रोडक्शन होना बंद हो गया था. वर्क इन फैक्ट्री, डॉक्स एंड रेलवेज ऑल्सो वेंट ऑन ए स्ट्राइक. यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है जो कहीं ना कहीं अपने को एंगेज किए हुई थी, सबने अपना काम छोड़कर किसमें इंक्लूड हो गए थे? वो स्ट्राइक में इंक्लूड हो गए थे. द सोल्जर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रिवोल्यूशनरीज बोल्शेविक इन द कंट्री. बोल्शेविक को बेसिकली कौन लीड कर रहा था? आपके लेनिन लीड कर रहा था. और जितने भी आपके वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो किसके सपोर्ट में आ गई थी? आपके बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में आ गई थी. उसके बाद क्या होता है? द जार मैनिफेस्टो. जार एक मैनिफेस्टो इशू करता है 1905 अक्टूबर 1905 में. उसमें क्या होता है? ही प्रॉमिस टू ग्रांट फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली. उसमें वो बोलता है कि आप लोगों को स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है आपको. प्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं,
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये सारे फ्रीडम्स उनके लोगों को दी जाती है, और ये सारी जो इश्यूज हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जार के मैनिफेस्टो में इंक्लूड होते हैं। सो ऑल्सो प्रोमिस ए कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड द ड्यूमा, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात बोली जाती है, और एक पार्लियामेंट बनाई जाती है, जिसका जो मैंने बताया कि जो रशिया है वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा बोला जाता है। और ड्यूमा का बेसिकली वर्क क्या होता है, टू मेकिंग द लॉज। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल गिवन इन द मैनिफेस्टो वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड द जार रिवर्स हिज डिसीजन। इट मीन्स जितनी भी मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें की गई थी, ये सारी बातें, वो उनसे जो जार है वो क्या कर जाता है, बैकआउट कर जाता है, वो उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं करवा पाता है। Then, so student, this is our chapter. Next, in the next lecture we will discuss the formation of Soviet. Thank you and have a nice day.